Good morning class, this is Tina Singh. Today I will explain chapter 2nd Accounting for Partnership Firm. But before starting the chapter, I have to explain the syllabus. In part A, we will discuss about the not-for-profit organization. Already have we will discuss partnership firm and companies. First part, financial statement of not-for-profit organization, 10 mark question from this chapter. Second, accounting for partnership firm, 30 marks question from this chapter will become in your board exam. And third, accounting for companies, 20 marks question. So total part A, 60 marks question will become in your board exam. Part B, financial statement analysis, fourth unit, analysis of financial statement, 12 mark question. Cash flow statement, a single question will become from this chapter, 8 marks, so total 20 marks. So according this syllabus, we have read step by step. But today I will explain accounting for partnership firm. So let's start. This is your chapter map for accounting partnership firm fundamentals. So you have to be prepared in your notebook. Chapter map accounting for partnership firm fundamentals, meaning, need, Indian Partnership Act 1932, features and natures, partnership deed, right and duties, rules applicable in the absence of partnership deed. Next, two or more person, existence of an agreement, carrying on a lawful business, mutual agency, earning and sharing of profit, unlimited liability, in a other act LLP. Special features of Partnership Act, ascertainment and distribution of profit among partners, final accounts of partnership firm, detection and correction of error, past adjustments, capital account of partnership, partners, fixed and fluctuating capital, profit sharing ratio, guarantee of minimum profit, partner's salary, interest on partner's capital, interest on drawing, manager's commission, rent paid to partners and partners loan interest. So in this chapter we have discussed all these concepts step by step. So, first, now the meaning of partnership. What is partnership? A partnership firm is an association of two or more persons to carry on a legal business and share its profit or losses. The person who join hands together to do a business are individually known as partners and collectively a firm. इसका मतलब है अब पार्टनरशिप फर्म, किसी फर्म के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। लेकिन अगर वो पार्टनर इंडिविजुअली, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। वहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो उसके अकेले के होंगे। तो इसी तरह से अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो वो हमारी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। टू डू अ बिजनेस आर इंडिविजुअली, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो पार्टनर रहेगा, और अगर कलेक्टिवली दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के एक साथ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो वो हमारी फर्म बन जाती है, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर पिक्चर्स बनाई है जिससे आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, सपोज हमारी एक फर्म है, इसका नाम है ABC लिमिटेड। इस फर्म में तीन लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, अभय, भानु और चेतन। इन तीनों को हम फर्म में कहेंगे पार्टनर्स। जब ये तीनों किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए मिलकर काम करेंगे, वर्क टुगेदर, इट विल बी पार्टनरशिप। तो हम उसको, अब उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंसिडरेशन आपस में एक दूसरे के लिए बना है, फर्म के लिए जो बना है, वो उनका अब पार्टनरशिप बन जाएगा। इसके बाद रीज़न क्या है कि ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करें? एक्टिंग फॉर वन और ऑल, सभी उनमें से कोई एक आदमी काम कर रहा है अगर, और या फिर सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, और रीज़न क्या है काम करने का? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इसका मतलब है कि जब मिनिमम दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के एक साथ किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं तो ये हमारी पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। सो नाउ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में पार्टनरशिप के लिए क्या डेफिनेशन हमारे पास दी गई है? द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि जब किसी भी फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के
who have agreed to share the profit, एक दूसरे के साथ अपने प्रॉफिट या लॉसेस को बांटते हैं, of the business carried on by all और any of them acting for all। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप उन सभी लोगों के बीच किया गया एक ऐसा कंसिडरेशन है, एक ऐसा समझौता है जिसके लिए बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए वो सभी लोग आपस में सहमत हुए हैं या कंसीडर हुए हैं, जिसका संचालन, जिसको ऑपरेट करने के लिए उन सभी लोगों ने मिलकर के काम किया है, या फिर उनका कोई एक हेड है और वो हेड मिलकर के अपने जो पार्टनर्स है, अदर पार्टनर्स है, उनसे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कराता है। तो ये जो हमारी यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ कि पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर के एक दूसरे के लिए काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, या फिर उनमें से कोई एक हेड है और वो अपने अदर पार्टनर से के साथ मिलकर के अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता है, और जो भी प्रॉफिट वहाँ पर उसको अचीव होता है वो उन सब के साथ उसको शेयर कर लेता है। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि हमारी पार्टनरशिप में कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये हमारी पार्टनरशिप चल रही है। फर्स्ट, एटलीस्ट 2%, कम से कम यहाँ पर किसी भी फर्म को चलाने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, और सभी पार्टनर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे और जो भी कंसीडर उनका आपस में हुआ है उसके लिए वो काम करते रहेंगे। सेकेंड इज एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, दिस एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। अब यहाँ पर एग्रीमेंट में आप लोगों को 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ड्स आर देयर, रिटन एंड ओरल। इसका मतलब है कि अगर एग्रीमेंट हमारा जो फर्म है अगर वो ऑरल बेस पर काम कर रही है तो कॉन्फ्लिक्शन ज़्यादा होंगे, क्लैशेस ज़्यादा होंगे और डिस्प्यूट्स भी फर्म के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन अगर सारा एग्रीमेंट रिटन है और रिटन डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है तो वहाँ पर पार्टनर्स के बीच में या फर्म के बीच में फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग के लिए या दूसरे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वहाँ पर जो क्लैशेस होंगे वो कम होंगे और फर्म ज़्यादा प्रॉफिट के साथ काम करती रहेगी। इसीलिए एग्रीमेंट का यहाँ पर रिटन होना ज़्यादा ज़रूरी है। Legal business, an agreement should be for the purpose of carrying on the business or profession. The business to be carried on by the partner should be legal, कि फर्म के अंदर जो भी कोई काम किया जा रहा है वो काम आपका लीगल होना चाहिए। So next 4 elements is profit sharing. The agreement between the partners must be to share the profit or losses of the business in the particular ratio. फर्म के अंदर जो भी एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई किया है पार्टनर्स की तरफ से, उसी प्रॉफिट रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फर्म के पार्टनर्स को। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ पर फर्म म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करेगी और वो आपस में ही कंसिडर कर लेंगे कि हमारे प्रॉफिट या लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट अप्लाई है तो वहाँ पर फिर म्यूचुअल एजेंसी कुछ काम नहीं करेगी और वहाँ पर जो भी प्रॉफिट लॉसेज या अदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे वो सब उनके रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स दैट ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल। सभी वहाँ पर हेड हैं। ईच पार्टनर इज एन इन द सेंस दैट ही कैन बिंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट डन, और सभी लोग मिलकर के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं इंडिविजुअली और उसके साथ साथ टुगेदर सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं जिसको वो पार्टनरशिप फर्म में रखते हैं। Is number of partners. The minimum limit of partners in a firm is 2 and maximum number of partner in a banking firm should be 10 and in the other firm should be 20 according to the 1932 Act. 1932 Act के अकॉर्डिंग हमारे पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोगों का होना और मैक्सिमम 10 लोगों का होना कंपलसरी था। इसके बाद फर्म ने कहा या एक्ट में अप्लाई किया कि एंड इन द अदर फर्म शुड बी 20। लेकिन अगर कोई फर्म किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रही है, सपोज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर उनके 20 लोग इन अ पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकते थे। लेकिन 1932 एक्ट के बाद भी कुछ एक्ट अप्लाई हुए जिनके बारे में मैं आपको और बता रही हूँ। सो
अकॉर्डिंग टू 1932 से लेकर के 1956 तक जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट था, वहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 लोगों को कहा गया कि अगर इतने लोग मिलकर के किसी फर्म में काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट 2013। अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, और जिसमें कहा गया है कि 2 to 50 और कैन बी 100 कि अगर कम से कम 2 लोग और ज़्यादा 50 या 100 लोग मिलकर के काम करना चाहें तो वो सेक्शन 464 में अटेंड होंगे। और यहाँ पर लेकिन अगर ऐसा होता है 50 या 100 लोग मिलकर के किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे थे तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और वहाँ पर सारे रूल और रेगुलेशंस कंपनी एक्ट के आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि वो फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर मिनिमम नंबर उसके 2 होंगे। इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पर उसके मेंबर कैन बी 7 हो सकते हैं। बट एज पर द कंपनी एक्ट 2013 इट कैन बी 50 to 200। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2013 it can be exceed 50 to 200, but it will be converted in a company. Next meaning is partnership deed. Partnership deed as stated above, a partnership is formed by an agreement. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है और ये रिटर्न ही होता है। दिस एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटर्न, लेकिन कंपलसरी है इसमें रिटर्न होना। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एग्रीमेंट आपने रिटर्न में फिल किया है अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ये ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। थ्रू द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग कि आपके फर्म के अंदर जितने भी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और उन सभी ने मिलकर के जो एग्रीमेंट बनाया है वो रिटन है। बट द अब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट मे बी द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर फर्म ने कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं प्रिपेयर किया है, तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैनेज करना पड़ेगा और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिनको संभाल पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डीड में क्या डिफरेंसेस है। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म है जहां पर मिनिमम 2 या मैक्सिमम कितने भी लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो वहां पर क्लैशेस से बचने के लिए, डिस्प्यूट से बचने के लिए फर्म अपने प्रॉफिट या लॉसेज या जो भी रेन्यूमरेशंस हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर फर्म ने पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट बनाया है और उस एग्रीमेंट में सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया है और सभी पार्टनर्स के लिमिटेशंस या रूल अप्लाइड किए हैं, तो अब वहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही वो सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन से कंटेंट का होना कंपलसरी है हमारी पार्टनरशिप डीड में। फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले आपको फर्म का नाम बताना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि आप पार्टनरशिप में कितने साल के लिए या कितने टाइम के लिए आपने अपनी पार्टनरशिप को प्रिपेयर किया है वो आपको बताना पड़ेगा। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप की डेट कब से शुरू होगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। सपोज एक फर्म के अंदर, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ए बी सी 3 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो तीनों का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए कितना होगा ये सभी फर्म को कंटेंट्स में अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। रेशो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर, किस रेशो में उसके प्रॉफिट या लॉसेज को फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये सारी डिटेल्स हम पार्टनरशिप डीड में फिल करेंगे। इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग क्या चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है या लोन के लिए अप्लाइड करता है तो उसको कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करना होगा। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ एनी पेबल टू अ पार्टनर, फर्म के अंदर पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं, कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा नहीं, तो ये सारी डिटेल्स भी वहाँ पर आपको रिटन डॉक्यूमेंट में फिल करना पड़ेगा। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, ये
11, 12 और 13 ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं बता रही हूँ। रूल्स इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई फर्म पार्टनरशिप डीड को नहीं प्रिपेयर करती है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे उसके बारे में देखिए। द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल रेशो, कि फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस मिले हैं वो सभी उसको इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने क्लासेस से बचने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन 6% पर एनम टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फर्म काम कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर्स फर्म से लोन के लिए अप्लाइड करता है, लोन टेक ओवर करता है, तो 6% का जो रेट है वो फर्म को पे करेगा। नो इंटरेस्ट टू अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं पे करेगी। नो पार्टनर इज टू गेट एनी रेन्यूमरेशन लाइक सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। फर्म के अंदर कोई भी सैलरी या कमीशन या कोई भी अदर रेन्यूमरेशन फर्म की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा अपने किसी भी पार्टनर्स के लिए। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। और इसी तरह से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म भी अपने पार्टनर से टेक ओवर नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जैसा आपने पीछे पढ़ा कि पार्टनर्स ने जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को मिले थे वो सभी उसने इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म को मिले थे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फर्म के पास अब कुछ भी रिमेन नहीं रह जाता है। तो इसी वजह से फर्म क्या करती है कि उसको कहती है कि जब मैंने सारे प्रॉफिट या लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वल रेशो में, तो मेरे पास आपको सैलरी या कमीशन या अदर कोई रेन्यूमरेशन देने के लिए पैसा नहीं है। नेक्स्ट, individuals not competent to be admitted as a partner to Indian Contract Act 1872। एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग किसी भी फर्म के अंदर इस तरह की जिसके अंदर डिसक्वालिफिकेशंस होंगी वो पार्टनर्स नहीं बन सकता। फर्स्ट, माइनर मतलब नाबालिग। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास दिमाग कम हो या वो अनमेच्योर हो, तो उस तरह के व्यक्ति को भी हम पार्टनर्स फर्म में नहीं बना सकते। थर्ड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को अगर कानून ने या लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया हुआ है तो हम उसको भी फर्म में पार्टनर नहीं बना पाएंगे। इंसॉल्वेंट पर्सन, अगर कोई दिवालिया है, सपोज उसकी सारी एसेट्स, कोई बिजनेसमैन था उसकी सारी एसेट्स सेल आउट हो चुकी हैं, अब उसके पास कुछ पैसा नहीं है, कोई गुडविल नहीं है मार्केट में, तो ऐसे भी व्यक्ति को हम पार्टनर्स नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, it is also called LLP. Act 2008, it is a body corporate and legal entity separate from its partners. All partners have limited liability. In LLP, one partner is not responsible for or liable for another partner's misconduct or negligence. इसका मतलब है कि एक और एक्ट फर्म के अंदर अप्लाइड किया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फर्म को मिलती है, जिसको हम LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। एक्ट 2008 में हम इसको यूज़ करते हैं और इसका मतलब है कि एक ऐसा लीगल एंटिटी सेपरेट तरीका है जिससे फर्म के सभी पार्टनर्स के पास एक लिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है और उसके ज़्यादा लिमिटेड लायबिलिटी के लिए ही वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और कोई भी एक पार्टनर किसी भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। और अगर किसी दूसरे पार्टनर के द्वारा कोई मिसकंडक्शन या नेग्लिजेंस किया जा रहा है, किसी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, तो उसके लिए एक पार्टनर को भी हम क्या नहीं करेंगे, अपॉइंट नहीं करेंगे और वो गलती उसी की मानी जाएगी जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक LLP का एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए। सपोज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर पार्टनर्स इन अ LLP। कोई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पार्टनर्स मिलकर के एक LLP एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म में अपनी एक पार्टनरशिप बनाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ₹1 लाख ऑन कैपिटल।
इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ थी जो इन लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया। द कंपनी अनफॉर्चुनेटली मेक्स अ ह्यूज बिजनेस लॉस ऑफ ₹25 लाख। लेकिन जो बिजनेस था उसमें उसको 25 लाख रुपीज़ का अचानक से नुकसान हो गया। बट द लायबिलिटी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो उनकी लायबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। लायबिलिटी लिमिटेड इसलिए थी क्योंकि 1 लाख रुपीज़ की ही उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। टू जस्ट द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंड द बिजनेस टू जस्ट द एसेट ओनली ₹1 लाख। उनके पास जो एसेट्स थी अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए वो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की थी, इसीलिए उनकी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। द क्रेडिटर्स कैन नॉट टच देयर पर्सनल एंड होम एसेट टू रिकवर द रिमेनिंग ₹24 लाख। लेकिन अगर अब वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ की जो लायबिलिटी हमारे ऊपर ओवर है हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे क्रेडिटर्स हमारी पर्सनल और हमारी होम एसेट्स को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं और अपने जो पेमेंट्स हैं उनके लिए हमें हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट इफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर पार्टनर इन फर्म एंड द बिजनेस मेक द लॉस ऑफ ₹25 लाख। लेकिन अगर यहाँ पर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म या नॉर्मल पार्टनरशिप अप्लाइड की हुई होती एक्स और वाई की तरफ से, तो यहाँ पर जो लॉस है 25 लाख रुपीज़, लॉस ऑफ ₹25 लाख, देन द पार्टनर आर पर्सनली लायबल। तो वहाँ पर अब उनको अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए 25 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट है, जो क्रेडिटेशन है, जो लायबिलिटी है, उसको पे करने के लिए उनको अपनी होम एसेट्स को भी सेल आउट करना पड़ता। तो इसका मतलब है कि एलएलपी एक्ट को अगर कोई भी फॉर्म यूज़ करती है तो वो एक लिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है और जहाँ पर उसको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है जिससे वो अपनी पर्सनल एसेट्स को बचा सकता है। लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट यूज़ किया है, एक सिंगल पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो माय स्टूडेंट्स, you have to note all these notes you have to prepare in your homework notebook. So take care and goodbye.